Welcome viewers. In this video, we will see about age group wise population in India. Since last few videos, we have been discussing various aspects related to population of India. So today's aspect selected, the angle or topic selected is age wise population in India. A table is already prepared on the board just to take a view of what is the scenario of age-wise population in India. We have divided the age groups of total population into three categories. First is 0 to 14 years of age group, include children. इसमें बच्चे शामिल होते हैं. Second age group is 15 to 64 years. 15 to 64 years. We call it working population or active population, and this age group only constitutes labor force of any country. इसी एज ग्रुप से कंट्री का जो वर्किंग फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो इसी ग्रुप से आता है. एंड थर्ड एंड लास्ट ग्रुप इज 65 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप, यानी 65 साल और उसके ऊपर के एज ग्रुप वाले मेल और फीमेल ये ग्रुप में हम शामिल करते हैं. इसको हम सीनियर सिटीजन ग्रुप भी कह सकते हैं. ये नॉन वर्किंग एज, ओल्ड एज पॉपुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, चलो अब वी हैव टेकन 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स. 2005, 2011 आर एक्चुअल फिगर्स एंड 2020, not actually 2020, but it is actually 2019 because 2020 is just going on. We have not yet finished 2020. So it is 2019. Estimated figures are kept here in this last column. We call it estimated because next census is due in 2021. और नेक्स्ट सेंसस आबादी की गिनती से ही प्रिसाइज, एक्यूरेट और रिलायबल फिगर्स हमको पता चल सकती है. तो ये दो फिगर हैं, रियल हैं, ये एस्टिमेटेड हैं. इसका क्लैरिफिकेशन पहले कर लेते हैं. चलो, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ चिल्ड्रन ग्रुप, एज ग्रुप, दैट इज 0 to 14 years एज ग्रुप. 2005 in India, these all figures are in percentage. 32.78% of population out of the total population belong to 0 to 14 years of age group. Then in 2011, after 6 years, means last census of India, 30.5% population belong to 0 to 14 years age group. आपने नोट किया होगा कि थोड़ा स्लाइड डिक्रीज आया है 2011 में young children's population में. And as per estimated figures of 2019, still there is a slight change, and that is reduction in the age group of children population. इसका implication और उसकी जो एनालिसिस है वो हम लास्ट में करते हैं. नंबर 2, 15 to 64 years जो यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसकी फिगर मेजोरिटी है इंडिया में, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया. 62.44% of people out of 100% population belong to this age group in 2005. In 2011, that figure rose to 64, and still in 2019, as per estimated figures, that figure still further rose to 67. And a majority of India's population is working population. इसका implication और analysis और conclusion हम बाद में निकालते हैं. And लास्ट में सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है इंडिया की, वो है 44.78% out of 100% belong to this age group in 2005. 2011 में ये फिगर स्लाइटली मार्जिनली राइज हुई and it reached to 5.2% out of 100%. And 66.38 it further rose to estimated estimation of 2019 to 6.38. Total of all these three columns is 100% in all cases, right? तो ये 100% पॉपुलेशन का 2005, 2011, 2019 का एज वाइज ब्रेकअप है. इससे दो बड़े कंक्लूजन निकलते हैं दोस्तों, और वही ये वीडियो का कंक्लूजन है. कंक्लूजन नंबर 1, India is having child
population is significant, means it's good and it is on the decline. इंडिया के पास बच्चों की जो आबादी है वो बिग है, बड़ी है कंपेरेटिवली. हाईएस्ट तो वर्किंग एज ग्रुप है, लेकिन ये 32.78 यानी राउंड अबाउट 33%, कोई 1/3 पॉपुलेशन हुई. इट्स नॉट ए स्मॉल प्रोपोर्शन. तो इंडिया की नियरली 1/3 जो आबादी है वो बच्चों की आबादी है इंडिया में आज प्रेजेंटली, राइट. और इसमें स्लाइड डिक्रीज आ रहा है. इसका कंक्लूजन ये निकलता है स्लाइड डिक्रीज का कि बर्थ रेट इज ऑन द डिक्लाइन इन इंडिया. When number of children are decreasing gradually time by time, it means birth rate is on the decline, and birth rate is on the decline means again a good sign to contain or control population explosion in India. आबादी का जो विस्फोट, वस्ती का जो विस्फोट हुआ इंडिया में पिछले 50-60 सालों में, उसको कंटेन करने के लिए बर्थ रेट को डाउन लाना इन कंट्री के लिए बहुत जरूरी है. और वो यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है कि बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आने से, लिटरेसी बढ़ने से, एजुकेशन बढ़ने से, डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ये डाउन आया है. नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन जो पॉपुलेशन है वो नेग्लिजिबल है, कंपैरेटिवली बहुत कम है. एंड रिमेंबर, सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी नेशन. सोशल सिक्योरिटी के, हेल्थ और हाइजीन के बड़े इश्यूज, केयर टेकिंग के बड़े इश्यूज आते हैं ये पॉपुलेशन को. यूरोपियन कंट्रियों में ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है, और ये जो दो प्रोपोर्शन की एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो लो है. एंड दैट इज वरी फॉर दोज कंट्रीज, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दोज कंट्रीज. हमारी कंट्री का उल्टा है कि हमारी कंट्री में वर्किंग फोर्स हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 2/3, राइट. वर्किंग एज ग्रुप वाली जो यंग पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन है. तो इंडिया के पास इतना लेबर फोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, कि इंडिया दुनिया भर की कंट्रियों को भी स्किल्ड लेबर, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रहा है. यहां आप देख सकते हैं कि 62.44, 64 मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है. इसका कंक्लूजन ये निकलता है, व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज ऑन द राइज स्लाइटली और ग्रेजुअली, इट मीन्स in future India will have sufficient workforce, sufficient labor, and that will give a boost and momentum and a push to economic growth and development of the country, right? So that is about age wise